Hello and good morning to everyone. Welcome to this fresh Sunday morning. Warm greetings to all on the second day of the workshop. Hope you all have enjoyed the last session we had yesterday. And about today's session, it will mostly be practical, more or less inclined towards totally a hands on session. After such an interesting session by our expert Mr. Prashant, we are all very excited for today's session as well. Kindly follow the guidelines in order to maintain the decorum of the event. In case you have any queries, write them in the comment section. It will be answered by the speaker. Keep your mic and videos off during the session and gain as much knowledge as possible. With that, I would like Mr. Prasant to take over from here and continue with the session. Over to you, sir. Uh, Thank you, Ishita. Okay, so guys, yesterday we had just gone with so many simple things. Okay, basis on that the Arduino and the thing. Okay, so today I will just tell you something because right now I just tell you the things with the help of PPT or like that. Okay, not able to do the things इन दैट वे के जो हम लोग एक वर्ट फिजिकली जो ट्रेनिंग्स पे रखते हैं ठीक है लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट कि आप लोग चीज़ों को थोड़ा समझें भी कैरियर कहाँ से शुरू करना है इस चीज़ को लेके ओके ऑल एंड ऑल सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द थिंग्स नेट के नीचे जाते ही मदर डाली होगी। यस थोड़ा सा माइक को गाइस प्लीज ऑफ रखने की कोशिश करो yes guys so yesterday we had talked about that hardware the software okay we had performed the programming Arduino programming basically okay so today I am just going to do the things IoT programming languages okay IoT programming languages the widely used Arduino sorry IoT programming is what is your mainly two programmings are there one is your embedded C, okay, which is basically for that microcontroller based, and the second one is going widely nowadays that is a Python, okay. So in both the programming languages, we are performing the IoT, okay. Yesterday we had done little bit in your Arduino standard programming, that is the combination of your C, C++, Java, okay, because the Arduino IDE is written on that basis, okay, guys. So now what we have to do, we just have to do the things in your embedded C. Yesterday, let us suppose I had made a one program to just turn on the LED. Okay, turn program था कल जो हम लोगों ने बनाया था program to turn on LED. Yeah. Yesterday we made this program. Okay. But today I just want to make the same program where I can access the LED. Okay. From server hand or from a mobile application or like that. Okay, guys. So now what I just have to do. Okay. हम एक प्रोग्राम बनाना है तो फॉर डेवलपिंग एनी प्रोग्राम इन एम्बेडेड सी बिकॉज द बेस ऑफ एनी डेवलपमेंट जस्ट बिफोर योर this session I was having a one call okay from one of the engineer today he was having uh, research in DRDO okay Delhi he is in the Delhi right now okay he just called me from there okay and he was just asking sir what the base for this product okay if I just want to do the thing okay because in the market the peoples are performing the things on the Arduino programming or the Raspberry Pi programming directly but that is not the base for any industry okay the base required to develop any product is your creation of the libraries अब मैं थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूँ इस बात को जो मैंने सारी बातें बोली कि बॉस जो प्रोग्रामिंग हम लोगों ने कल किया था ऑलरेडी डिजाइन लाइब्रेरी का काम किया था लेकिन आज अगर हमको अपनी खुद की लाइब्रेरी बनाने की जरूरत आती है तो हम लोग नहीं बना पाते और जिसकी वजह से हम लोग लैग कर जाते हैं इस फील्ड को आईओटी फील्ड को एम्बेडेड फील्ड को ओके सो टुडे वी विल सी वन थिंग दैट हाउ द थिंग्स आर देयर ओके सो so the thing is what
just see over here and just do one thing. I'm just writing a one small code, okay, to turn on the LED in the form of your embedded C. Okay, so yesterday we just had used that Arduino. Okay, in that Arduino, the controller we are using, that is a 8 mega 80 mega 328p. ओके 80 मेगा 328p इज द कंट्रोलर. नाउ जब आप इंटरव्यू देने जाते हो कहीं पर किसी भी चीज को रिसर्च करते हो तो गाइस इस कंट्रोलर के पीछे जो नाम दे रखा है ना इसका भी एक मीनिंग होता है. दिस 80 स्टैंड्स फॉर द एटमेल. मैं थोड़ा स्पीड रखूंगा आज तो मेरे को थोड़ा कैच करते रहना. मेगा इज द सीरीज. मेगा इज द सीरीज. ओके सीरीज ऑफ व्हाट? द कंट्रोलर. ओके द कंट्रोलर फैमिली. 32 इज, जब भी मैं कभी भी कोई इंटरव्यू लेता हूँ गाइज, इन द लास्ट मंथ, in the last 2 months I took almost 140 interviews. Just guess how many we have selected? Zero. Out of 140 interviews we have selected 0% from the market. Okay, why it is so? That we know the things but what industry want, we don't know that thing. हमको पता है चीजें हैं क्या, लेकिन इंडस्ट्री को क्या चाहिए हमको वो चीज नहीं पता. ओके सो अब हमको ये पता ही नहीं है कि 8 मेगा 328 होता क्या है, बस ये पता है माइक्रो कंट्रोलर है. अब मेरे पास कोई टास्क आता है आईओटी बेस्ड कि मेरे को ये काम सिर्फ 2 एलईडी पे कराना है या फिर मेरे को 2 रिले स्विच करानी है इससे. अब यू आर सजेस्टिंग मी कि सर जस्ट यूज दिस कंट्रोलर जिसकी कॉस्ट 120 रुपीज है एंड आई एम हैविंग द टारगेट टू जस्ट डेवलप दैट प्रोडक्ट विद इन द 50 रुपीज. अगर मेरे पास एक टारगेट है 50 में बनाने का तो मैं 120 रुपये का कंट्रोलर कैसे यूज कर सकता हूँ. ओके सो फॉर दैट यू मस्ट हैव द अवेयरनेस फॉर ऑल दीज थिंग्स व्हिच आई एम जस्ट टेलिंग राइट नाउ. ओके तो आज का जो हमारा कुछ सेशन रहने वाला है कुछ इंडस्ट्री फोकस रहने वाला है. ठीक है, जो लोग अभी कनेक्ट नहीं भी हुए हैं तो आज वो लोग कुछ चीज मिस करने वाले हैं. देखो पढ़ाना, नो वन कैन टीच एनीवन, राइट? नो वन कैन टीच एनीवन. दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट कि कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता है. ऑलवेज एवरीवन कैन गाइड टू समवन. ठीक है, हम आपको गाइड कर सकते हैं, कोई भी आपको गाइड कर सकता है और कोई आपको पढ़ा नहीं सकता है. ओके सो राइट नाउ आई एम जस्ट गाइडिंग यू towards the industry where you just have to focus on your career. Okay, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ. आज का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन इसी रहने वाला है, इंडस्ट्री को चाहिए क्या, जिसकी वजह से आज हम सब लोग एक इंजीनियरिंग ऑप्ट कर रहे हैं. इंजीनियरिंग ऑप्ट करने का रीजन कुछ ना कुछ ऐसे रहेंगे, किसी को अपना एक अच्छा जॉब लेना है, ठीक है, किसी को कुछ ऐसा करना है कि अपना खुद का स्टार्टअप करना है, किसी को अपने इनोवेशंस करने हैं. ओके सो गाइज इन दैट वे अगर हम बात करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी मार्केट के अकॉर्डिंग आना हम लोगों को जरूरी है. ओके हम अपने लिए सब कुछ सीखते जा रहे हैं, मार्केट में कुछ प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे तो टेक्नोलॉजी का कोई वैल्यू नहीं है. समझ रहे हैं? सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, this 8 mega 328 is the 80 is the atman, mega is the series, 32 is the 32 kilobyte फ्लैश मेमोरी. जिन लोगों को कल पता था, जिन लोगों ने थिंकर कैड पर काम किया था, ये सारी चीजें उनके लिए भी आज नहीं है. ठीक है, 32 किलोबाइट फ्लैश मेमोरी. इस फ्लैश मेमोरी के अंदर क्या होता है? फ्लैश मेमोरी इज द पार्ट ऑफ द ईप्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. अब ये क्या होता है? ठीक है, रोम हमारी अलग अलग कैटेगरीज की होती है, सब लोग बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हो गए आपको. ओके लेकिन वो रोम चलती कैसे है, क्या चीजें होती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें मैं थोड़ा थोड़ा आज हिंट देने वाला हूँ. प्लीज नोट करते जाना जिसको भी अगर इंटरेस्ट आता है इन चीजों में. तो रोम और रैम के लिए आपके पास एक सब्जेक्ट होता है आपकी इंजीनियरिंग में, दैट इज कंप्यूटर ऑफ आर्किटेक्चर. ओके अगर आपको ये फील्ड चूज करना है फॉर योर कैरियर, don't go 48 subjects, just choose only 7 to 8 subjects from them and just opt this upon this technology as your career. Okay, what are those subjects? I will tell that to you. वैसे कल से लेकर अभी तक समझ में आ चुका होगा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स में आना हम लोगों को जरूरी है. Okay guys, so if you just interested to know that thing also, I will also let you know about that thing, that which are the subjects from your engineering background जो कि आपके benefits रहने वाले हैं. Okay, so this is the flash memory is the part of your EEPROM. 32 किलोबाइट फ्लैश मेमोरी होती है जिसके अंदर आपका प्रोग्राम लिखा जाता है. ओके EEPROM बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी. इलेक्ट्रिकली EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी.
ये ऑलरेडी स्टेटमेंट एक डिफाइन करता है जो कि आज अपनी आप हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव में से डेटा लेते हो और वहां पर शिफ्ट डिलीट दबा देते हो या डिलीट का ऑप्शन दबा देते हो। ओके, सो दैट इज व्हाट इज योर इलेक्ट्रिकली लेवल। एक सिग्नल जाता है इलेक्ट्रिकली, वोल्टेज जाता है वहां पर, एंड दैट वोल्टेज इज गो टू द पेन ड्राइव एंड जस्ट रिमूव दैट फाइल फ्रॉम दैट लोकेशन। ठीक है, लेकिन वो लोकेशन से हटती नहीं है, उसकी साइज कम हो जाता है और वहीं पर रहती है। अगर आप लोगों को पता हो, जब भी आपका लैपटॉप फॉर्मेट वगैरह कुछ भी तो आपका डेटा रिकवर भी हो जाता है, लेकिन वो एग्जैक्ट लोकेशन रिकवर हो ये कंपलसरी नहीं, वो फाइल कहीं की कहीं पर भी चली जाती है। ओके, सो ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट कि आपका सिग्नल वहां है। एंड व्हाट इज सिग्नल? वन ऑफ द मोस्ट अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कल हमने आईओटी की बात की है। ठीक है, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे कोई सिग्नल भेजना है, तो सिग्नल जा कैसे रहा है? वन, व्हाट इज द सिग्नल बेसिकली? ओके, राइट नाउ यू आर टाइपिंग ऑन योर लैपटॉप एंड ऑल द थिंग्स। ओके, तो व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज द सिग्नल वी आर हैविंग? ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। ओके, तो दिस 8, again the 8 is what is your, बोलो ठीक बोलो। है, it just stand for the 8-bit microcontroller. Okay, it just stand for the 8-bit microcontroller family, or you can say that it's a सॉरी, ये जो 8 यहाँ डिफाइन कर रखा है ना आपने, ये 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर को डिफाइन करा है कि 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, और जो पी जो सीरीज होती है ना, ये डिफाइन करती है जो कंट्रोलर है ना, वो कंट्रोलर क्या है। ये अलग अलग कंट्रोलर आता है, पी आता है, पीयू आता है, विदाउट पी आता है। ठीक है, और ऑन दैट बेसिस आप कंट्रोलर को चूज करते हो। आप आर्डिनो बोर्ड के अंदर लगा तो देते हो, अगर मैं पूछूंगा ना पूरा नाम कि आप कंट्रोलर कौन सा, 8 मेगा 328, तो बहुत सारे लोग बोल देंगे। आगे कौन सा लगा हुआ, पी लिखा हुआ, पीयू लिखा हुआ है, पीएल लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, इंडस्ट्री इस लेवल पर चलती है, समझ रहे हैं? सो इन दैट वे व्हाट, आपको सारी चीजें मैंने थोड़ा सा यहाँ डिस्क्राइब की है। ठीक है, तो ये 8 मेगा 328 के बारे में बात की, और जो कल आप लोगों ने कंट्रोलर देखा था वहां पर, उसके पास टोटल जो पिंस हैं, टोटल पिंस अवेलेबल है वहां पर 28। ओके, जिसमें से कि जीपीआईओ पिंस जो है आपके पास, जीपीआईओ पिंस कितनी है? 23। और स्पेशल फंक्शन जनरल जो स्पेशल फंक्शन पिंस हैं, स्पेशल फंक्शन पिंस हैं, वो बचती हैं आपके पास 5। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो आपके पास जीपीआईओ पिंस अवेलेबल हैं गाइस, ये आपके पास मिल जाती हैं 3 पार्ट के अंदर, पोर्ट में, पोर्ट बी, पोर्ट सी एंड पोर्ट डी। ओके, और जो जनरल पर्पस पिन्स हैं आपके पास, ओके, वो जनरल पर्पस पिन्स क्या मिलती हैं आपको? वीसीसी, ग्राउंड, 2 ग्राउंड होते हैं इसके अंदर, वीसीसी ग्राउंड, ग्राउंड, ए रेफरेंस एंड ए वीसीसी। बहुत सारे लोगों ने आर्डिनो पर काम कर रखा होगा। इफ आई जस्ट आस्क यू वन थिंग गाइस, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस ए रेफरेंस ओवर हियर? ए रेफरेंस हम लोग क्यों यूज करते हैं? सो कुड एनीवन टेल मी? कोई बताएगा मेरे को ए रेफरेंस यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? जस्ट गिव मी द चैट बॉक्स। Yes. What is the need of this A reference over here? Yes, no one knows. So this A reference is what? It is basically the analog reference voltage. This is the need of your ADC. Yeah, analog reference it is. Okay, लेकिन इसकी नीड कहाँ आती है अपने को? जो अपना एडीसी होता है ना, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो होता है, वहां पे हम लोग को एक रेफरेंस वोल्टेज के रेस्पेक्ट में ही, अब देखो हम लोग किसी के रेफरेंस में लेके तो बातें करते हैं, like as what if we are just saying this vehicle is going with this speed, वो स्पीड कहाँ से कैलकुलेट हो रही होती है कि एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। ओके गाइस, सो ऑन दैट बेसिस वी आर यूजिंग दैट थिंग। ओके, सो ये थोड़ा सा मैंने आज आपको कंट्रोलर के रेस्पेक्ट में बात करी है। ठीक है, अब जो आपके पास आर्डिनो बोर्ड होता है, ठीक है, आर्डिनो यूनो, यू आर वर्किंग ऑन आर्डिनो यूनो।
आर्डिनो यूनो पर काम किया आप लोगों ने, जो कल किया था प्रोग्राम, ठीक है। आर्डिनो यूनो के पास क्या होता है कि जो आपका पोर्ट बी है, ठीक है, इसकी जो पिन्स होती हैं, आपका पिन नंबर 8 to 13 होता है, ओके। आर्डिनो के ऊपर जो पोर्ट सी होता है, उसकी जो पिन होती हैं A0 to A5, और जो पोर्ट डी होता है, ये होता है पिन 0 to लेके पिन 7 तक। बाकी के VCC ग्राउंड पिन उसके ऊपर रहते हैं, ओके। इसका पिन डायग्राम आप लोग अपनी स्क्रीन पर खोल सकते हो कि कहाँ पर कौन सी पिन को लेके मैं बातें कर रहा हूँ अभी इस टाइम पर, ठीक है। सो दिस इज द थिंग जो मेरे को बतानी थी, जो कल भी बताने वाला था मैं, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा कंट्रोलर का एक ओवरव्यू दिया है जिस पर आप लोग अभी काम कर रहे हो, ओके गाइस। हम लोग कंट्रोलर पे तो काम कर लेते हैं लेकिन उसकी चीजें पढ़ते नहीं है, ठीक है। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू, ओके, you must have the awareness about that controller, and that controller knowledge you just gain from the data sheet. कभी भी इस इंडस्ट्री में काम करोगे आप लोग फ्यूचर में, तो आपको डेटा शीट जो वर्ड होगा बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके जितने भी टीम लीड्स होंगे, टीम मैनेजर्स होंगे, या फिर कोई भी डेवलपर आपके साथ काम कर रहा होगा, आपको कोई भी सीनियर्स काम कर रहा होगा, वो आपको एक ही चीज के लिए फोर्स करेंगे, जस्ट रीड द डेटा शीट ऑफ दिस आईसी, ओके। आप लोगों में से कितने लोगों को डेटा शीट पता है होता क्या है? हाउ मेनी जस्ट नो व्हाट द डेटा शीट इज? एनीवन नोस? Who's over here? Yeah, just got a reply from Rakshit. That's great. Right. देखो, अब डेटा शीट मैंने पूछा क्यों? बिकॉज इट्स अ की टू द सक्सेस टुवर्ड्स एनी माइक्रो कंट्रोलर और एनी आईसी यू आर हैविंग इन द मार्केट, ठीक है। एक सक्सेस की है ये आपकी उस चीज के लिए, ठीक है। लेकिन इसको रीड करने का एक तरीका होता है। व्हेन वी इज गोइंग फॉर एनी इंटरव्यू, ओके, तो आपसे एक ही चीज पूछते हैं, डू यू नो द डेटा शीट? यस, वी नो द डेटा शीट। हाउ इज रीड द डेटा शीट? आपको डेटा शीट पढ़नी आती है, ठीक है। ये जैसे यस, तो आपसे हैंड टू हैंड वहां डेटा शीट देंगे, को आपसे पढ़वाएंगे, ओके। या गाइस, दैट्स थिंग ये होती है इंटरव्यूज के अंदर, कि आपसे डेटा शीट तुरंत हैंड टू हैंड पढ़वाना शुरू कर देंगे ये लोग, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट व्हाट, तो डेटा शीट तो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, अभी हम लोग कुछ बहुत बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स थे, ठीक है, तो जो मेरे को इस तरीके से करने थे, तो एक जो हम लोगों ने कल प्रोग्राम लिखा था, ठीक है, उस प्रोग्राम को मैं एक बार एम्बेडेड सी में लिखता हूँ, ओके। लेट अस सपोज I am using the Atmel series over here, okay. I'm just quoting some messages. Yeah, guys, great. So I'm just writing a program over here, hash include avr/io dot hash. Okay, what is this? This is the header file for the avr platform, okay, जिसके अंदर जैसे हमारे पास सी के अंदर htdoc होता है, ये एम्बेडेड सी के अंदर avr प्लेटफॉर्म के लिए होता है। आप जिस प्लेटफॉर्म को यूज करोगे, ठीक है, क्योंकि एटमेल जो है वो एटमेल जो एवीआर का रहा करता था कभी, जिसको अब ओन कर लिया है माइक्रोचिप ने, ओके। लेकिन आज भी हेडर फाइल्स वगैरह वो सब एवीआर की ही यूज करते हैं, ओके। अगर आप माइक्रोचिप में जाओगे तो आप पिक का यूज करते हो, आप 8051 के 8051.h के नाम से हेडर फाइल आ जाएगी, ओके। आप जिस प्लेटफॉर्म पर जाओगे उसके अकॉर्डिंग चीजें आ जाती हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज योर डिले, हैश इंक्लूड यूटिल स्लैश डिले डॉट हैश। गाइज, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग है आईओटी के अंदर, ओके। Now I just want to write a one code int main, okay. Int main, you can just write void over here, non-returning type. Yesterday you just put that LED on pin number 5, okay. So DDRD, because I just noted over here that 0 to 5 जो पिन है वो पोर्ट डी की है, तो DDRD मीन्स होता है यहाँ पर डायरेक्शन। डायरेक्शन आई एम जस्ट गिविंग द आउटपुट,
So I'm just making it as 1111 Okay. After that, I just turning on the LED port D 0B pin number PV5. PV5 means this one. Others should be 0. So the program which we had written yesterday and the program which we are writing right now, both the things are same. थोड़ा सा आज ऊपर से गया होगा, I know it. Yes guys. तो एक ये छोटा सा प्रोग्राम मैंने एक एम्बेडेड सी में लिखा है अभी आप लोगों के लिए. ओके. इस प्रोग्राम में वही सारी चीजें हैं कि आप लोगों ने किस तरीके से एलईडी को ऑन किया था. अभी सर मैं एलईडी को ही लेके चल रहा हूँ. सोचो एलईडी के अंदर इतना झोलमेल है यहाँ पर. यस. सो दिस इज द थिंग इन फ्रंट ऑफ यू. इसी प्रोग्राम को अगर रन करके देखते हैं हम लोग वहां पर. अब इसी प्रोग्राम को मैं दूसरे तरीके से और लिख देता हूँ आपके सामने. ओके. मैं तरीके अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ गाइस जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि भाई कैसे क्या चीज थी. तो yesterday you just had one thing, that void setup. Void setup was there. Okay. That void setup and void loop. Okay. Void setup and void loop means a what? The part of that void main there. Sorry. Void setup and void loop are the parts of the that void main only. Okay. So inside the void setup, what you have to do, you just inside the void setup आपको क्या करना है कि सिंगल टाइम इंस्ट्रक्शन जो भी है, सिंगल टाइम इंस्ट्रक्शन आपने एक बार उसको इनेबल कर दिया. डेट. ओके. सो दिस विल बी ओवर हियर ddrd and you just want to continue it on and on and on each and every time. So you just make it over here. Okay. And if you just want to put a delay, then put the delay over here. Delay for 100,000 milliseconds. And again you just want to turn off the LED. You just turn off it. Okay. So over here it is like as what you're writing a program in your dev c. Okay. In dev c, this program is like as what is your this program is like as what is your I could say that your turbo c. Okay. In turbo c you just have to write each and everything. But this program is like as what is your dev c, in which the header file and all the things are pre-defined in your id. Okay. So I am just going to copy this program from here. Okay. And I'm just writing that thing in my screen over here. Okay. And whatsoever the program written over yesterday over here, I'm just going to select it, delete it, and just paste it this new program. So how many is saying the code will be this code will run over here? Just see. Sir, what are GPIO pins? General purpose input output. General purpose input output pins. Okay. Like as what 0 to 7, this 0 to, I'm just now using the notations over here, annotate, so that it will be more clear to you all. This 0 to 7, sorry. This 0 to 7 pin is your GPIO pin for port D. 8 to pin number 13 is the GPIO pins for port B. A0 to A5 is the GPIO pin for port C. Okay. This port C, port B, and port D are is what is your, this one is your microcontroller. Okay. This one is a microcontroller and the name of the microcontroller is ATmega 328. Okay. This one is your ATmega 328.
Okay, this is a 80 mega 3 to 8 microcontroller. This one is a USB port. Okay, this one is a reset button you are having. Okay, this one is a power jack. Okay, this one is a voltage regulator IC. This one is your crystal oscillator. Okay, this is your programming ICs over here. Okay, these are your capacitor, and that the ICs are there. Okay, so and this is that power LED on and off LEDs over there. Okay, so this is what the whole introduction about that Arduino Uno board. Okay, so now what I just done, those who know something yesterday, जिन्होंने बोला था सर हम लोगों ने इस पर काम कर रखा है ऑलरेडी. ओके, so for them also this is a new thing that you have to build the thing. Yesterday what you had done, that is what done on the basis of your libraries. But what you have done today, okay, that is on the basis of your creating the functions. आप खुद की चीजें बना रहे हो यहाँ पर. Okay, now let us suppose I want to turn on my 4 LEDs, all the 4 LEDs over here. Okay, so now what I just have to do, pin number 2 3. Okay, this one should be 1 2 3 4 5, 2 3 4 5. Okay, what I just changed, 3 2 4 5. Sir, could you please repeat the meaning of P? Yes, sure, definitely. Definitely. So I am having some doubts from your hand. That's great. आप doubts पूछ रहे हो, मतलब आप समझ रहे हो चीजें. ठीक है. After this, I will tell you those all the doubts which you are having right now. Okay. So now just see. I hope चीज क्लियर हो गई होगी आप सब लोगों को यहाँ पर. Yes. Okay. So I'm just coming to the doubts which you are having. That AVR is one of the platform there, Anand. Yeah, Anand, that AVR is the platform, okay, which is having its own software and the controller they are using of ATMET. Like as what the Arduino IDE, okay, that Arduino is one of the platform, the AVR is one of the platform, the PIC is one of the platform, the Taxa is one of the platform like that. Okay, so that is about that AVR. And then Rakshit, sir, could you please repeat the meaning of P in 8 mega 328P? Yeah, that P in 8 mega 328, the P is that the controller notification that this controller will be supporting. If it is really the PU, okay, then it just support the bootloader inside it. Okay, and if it is not having P, okay, it means that it's a normal microcontroller जिसको आपको अलग से प्रोग्राम करना पड़ेगा. Okay, अगर वहीं पर आपके पास एक PL के नाम से आता है, ठीक है, तो वो क्या बोलता है, वो एक तरह का माइक्रोकंट्रोलर जो लो पावर पर काम करता है. मीन्स जो आपके पास आईसी है ना, ये उसको नोटिफाई करता है कि क्या सपोर्टिव है इसको लेकर. ओके, then again one more question from that Rakshit only. Why LED connected to fifth pin in is working? We have not mentioned in code. Yeah, dear, in this code we had mentioned over here. Just see, this one is PV0, PV1, PV2, PV3, PV4, and PV5. This one is the PD5. Okay, this fifth pin, fifth pin which is standing on green, this is mentioned over here. One, guys, I'm just coming back to my whiteboard again. Okay, एक बहुत बड़ा रहस्य होता है, ठीक है, जिसके बारे में अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो शायद आप कभी इस चीज में कभी वो नहीं करोगे सर इसका मतलब क्या है. 1 and 0. Okay, this 1 and 0, what is your
let us suppose I just ask you one thing. What is data? Data क्या होता है guys? Data क्या चीज होती है? What is data? सपोज जैसे ऐसा पीडीएफ किसी चीज को रिजर्व करके रखना लाइक ऑल एंड ऑल या सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? इफ आई जस्ट आस्क यू द डेटा इन द फॉर्म ऑफ योर मशीन, देन व्हाट इट विल बी? अगर मशीन की फॉर्म में हम बात करते हैं डेटा को, तो व्हाट इट विल बी? कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 0. Then what is 1 and 0? A sequence of bits. That's great answer. Then what is 1 and 0? On and off signals, high and low, on and off binary digits. Yeah, signal, right? High volt and low volt, right? So guys, I just want to tell you one thing again. बहुत सारे लोगों का डाउट होगा. Guys, data means is your 1 and 0. Yes. Now, so many of you just having a doubt that 1 and 0 is the binary. Okay. In machine language, that binary. Okay. But what is binary, what is hex, and what is oct? All of them is like as a base 2, base 8, base 16, base 10. Radix, अगर याद हो सब लोगों को तो. Yes. So on that basis, you are having your binary hex. That is a data representation. Now, what is data? Basically, the data is nothing. It's a voltage logic level. Voltage logic level means like as what I'm just writing one. One means one का मतलब क्या क्या होता है? Output equals to high, equals to on, equals to true, equals to set. Okay. Output high, on, true, set. Okay. Anything else? And zero means input, low, off, false, reset. Yes. So now what it means, like as what I had just made this one over here in DDR. Okay, it means that what here I just declare the direction as the output. But once I just declare it in that port, okay, here one, it means a what? Over here it just shows as the on or the high voltage, and over here it just shows as a zero, means off. Okay, guys. So this 1 and 0 denotes in that way over here. समझ में आया? यहाँ पर हम लोगों ने 1 को एज आउटपुट बताया डीडीआर के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमने 1 को एज अ हाई वोल्टेज बताया जो मैक्सिमम होता है, और यहाँ पे हमने उसको 0 बताया जो कि लो वोल्टेज ऑफ हो जाता है. ओके, सो आई होप अप टू हियर यू आर हैविंग नो डाउट. ये समझ में आया? जो मैंने लास्ट में जो 1 and 0 बताया है ना, इसको थोड़ा लिख लेना सब लोग. 1 and 0 मीन्स yes. So now next, it's all about these things, and I hope you had performed some practice also at your home yesterday.
So this whole programming is what is your port D, okay, in that. Now you are having so many different things over here. Yes. So up to here, any doubt if people are having? अभी तक किसी का कोई डाउट है क्या? Yes. So there's a one doubt from Rakshit. The difference between P and PU. Yes, I just cleared that thing to you. Uh, some of the controllers are having P and some of them are having the PU. Okay. If your controller is having the P, okay, it means that it is supporting the bootloader. Okay. And if it is having that PU, okay, it means a what? It's just having a boot inbuilt bootloader inside it. जो आपके आर्डिनो के ऊपर जो लगी हुई आती है आईसी उसके ऊपर पीयू लिखा होता है ओके तो मीन्स उसके अंदर बूट लोडर ऑलरेडी रहता है जिसके थ्रू आप बस यूएसबी केबल लगाते हैं प्रोग्राम हो जाता है लेकिन जो पी लिखा हुआ आता है जो आईसी आपकी पी लिखी हुई आती है सिर्फ उसके अंदर आपको बूट लोडर अपने थ्रू डालना होता है ठीक है एंड आफ्टर दैट ओनली यू जस्ट एबल टू प्रोग्राम ओके रक्षित या so guys this is the thing okay now I'm just coming to my whiteboard okay and I'm just open a new slide. Can I delete all these things? Just using the seconds. Yes. So now what next? Whatsoever learned yet, okay, that IoT is okay. So that IoT is what your दैट IoT इज व्हाट योर गाइस जो भी हम लोगों ने अभी बात करी ठीक है जितने भी हम लोगों ने आर्डिनो की बात करी इसकी बात करी ठीक है अब इसी हार्डवेयर को हम लोग क्या कर सकते हैं अपना इंटरेक्ट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम वायरलेस थिंग ओके जो भी हमारे पास वायरलेस की जो भी चीजें होती है दोज वायरलेस कुड बी और मैं अभी सारी चीजें लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर ठीक है प्लीज नोट डाउन ऑल दैट थिंग this hardware whatsoever the hardware like is the led or arduino board or your button whatsoever the thing is want to interface you can interface all the things okay क्योंकि अभी हम लोग इतना डेप्थ में नहीं जा सकते in this little much of time okay but I can tell you so many things over here तो यहाँ पर हम लोगों ने जिस तरह से इसको किया है ठीक है तो अब इन सारी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट इज योर GSM technology, with the help of your Wi-Fi technology, with the help of your Bluetooth technology, okay, you can just send the data from one machine to the another machine. ठीक है
तो अब ये सारी चीजें चलती किस पर है? फॉर दैट यू मस्ट हैव अ नॉलेज अबाउट द यूएस आर्ट और यूए आर्ट। ओके, इस प्रोटोकॉल की आपके पास इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी सर्वर बेस्ड चीजें होती हैं, लाइक इज व्हाट द मोबाइल एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। आपके पास वेब एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन नॉर्मल वेब एप्लीकेशन, नॉर्मल मोबाइल एप्लीकेशंस नहीं होते। दीज आर योर आईओटी मोबाइल एप्लीकेशंस और आईओटी वेब एप्लीकेशंस होते हैं। ओके, आईओटी मोबाइल एप्लीकेशन, आईओटी वेब एप्लीकेशंस होते हैं, तो जहाँ पे आपका डेटा डिस्प्ले हो रहा होता है। ओके गाइस, सो इन दैट वे व्हाट जो भी आपके पास टेक्नोलॉजी आई, जो भी आपका डेटा आया, ठीक है, उसको आपने जीएसएम टेक्नोलॉजी, जीएसएम टेक्नोलॉजी क्या होती है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ओके, इसके बारे में सबको पता होगा जीएसएम के बारे में। सॉरी, जीएसएम के बारे में सबको पता होगा, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। वाईफाई आपको सबको पता ही होगा, ठीक है। वाईफाई में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि एस्प्रे, ईएसपी। ईएसपी खुद में एक वाईफाई प्रोवाइडिंग कंपनी है एस्प्रिंग के नाम से, ठीक है, और जिसको हम लोग यूज करते भी हैं अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर भी, ठीक है। ब्लूटूथ आज सबके मोबाइल फोनों के अंदर है, जिसमें डेटा एक जगह से दूसरी जगह आप भेज रहे हो, ठीक है। लेकिन ये जो सारी चीजें, ये सब के सब यूएस आर्ट पर काम करते हैं, ठीक है। सो फॉर ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ these all the base and all the things over here. Yes. तो अभी तक हम लोगों ने आईओटी का थोड़ा बहुत हार्डवेयर जाना, आईओटी के लिए हमें क्या क्या आना जरूरी है उसके बारे में जाना, ठीक है। और इन चीज़ों को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करने जा रहे हैं। ओके, हम लोग इन सारी चीज़ों को जो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हम लोग करते हैं अपने पास जितना भी आईओटी हम देखेंगे तो जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम। अगर इफ़ यू आर अवेयर, जी, सब लोगों को एक चीज़ तो पता ही होगा, मैं सबसे फास्ट है, फास्ट टैग जो होता है ना, दिस फास्ट टैग इज नथिंग, इट्स अ आईओटी इनेबल्ड डिवाइस। ओके, आपका आरएफआईडी सिस्टम होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है, जो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर रहता है, ठीक है। उसके अंदर डेटा आता है, ठीक है, और वो इनेबल होके आपका कहाँ आता है, वहाँ से आपका जो भी पेमेंट होता है वो सब कट के आपके सर्वर पर अपलोड हो जाता है। ओके, लाइक एज वॉट वंस यू ट्रेवल इन द मेट्रोज ऑल्सो, तो मेट्रोज के अंदर भी आप ट्रेवल करते हो तो आप क्या करते हो, अपना कार्ड लेते हो, ठीक है, उस कार्ड के पीछे एक यूनिक नंबर होता है, उस यूनिक के अंदर एक वैल्यू लोड रहती है, और जितनी बार टच होती है वो वैल्यू, ठीक है, उतनी वैल्यू उसमें से कट हो जाती है। ओके, सो इन दैट वे ये सारी चीजें यूज हो रही हैं मार्केट के अंदर। ओके गाइस, यस, या RFID is there. So in that way, this whole IoT is using in automotive sector. Automotive sector. Okay. Another thing is what is your एग्रीकल्चर सेक्टर, काफी अच्छे से यूज हो रहा है। डिफेंस में काफी अच्छे से हमारा IoT यूज हो रहा है डिफेंस सेक्टर के अंदर, ठीक है। और एवियोनिक्स, इफ यू हर्ड द वर्ड एवियोनिक्स, मीन्स एविएशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स मिलके एक एवियोनिक्स वर्ड बनता है, ठीक है। इन एविएशन डोमेन इट इज यूजिंग, ओके। इन योर इंडस्ट्रीज nowadays the PLCs in the market, okay, they are with your इंडस्ट्रीज के अंदर, जैसे कि आपके PLC वगैरह है, वो सब आज IoT enabled PLCs आ रही हैं। ओके, सो इन दैट वे वी आर यूजिंग दिस होल IoT concept. ओके गाइस, सो देखो डेप्थ में तो ये सारी काफी अलग अलग चीजें हैं, यस, लेकिन डेप्थ में हम जाने से अच्छा है कि पहले उन सारी चीजों को हम लोग क्लियर कर लें। ओके, और डेप्थ में तो फिर ये ट्रेनिंग प्रोसेस पे सारी चीजें चली जाती हैं अपने पास। यस, मैकाट्रॉनिक्स, राइट। मैकाट्रॉनिक्स मीन्स मैकेनिकल पार्ट के अंदर ऑलरेडी काफी अच्छे से यूज होता है, रोबोटिक्स के अंदर काफी अच्छे से यूज हो रहा है। yesterday I just given that robotics medical name, okay, robotics मेडिकल, ओके, काफी अलग अलग जगह पे यूज हो रही हैं यार चीजें। ओके, तो इसका कोई एक छोटा मोटा जगह नहीं है कि नहीं बस IoT सिर्फ यहीं पे यूज कर सकते हैं हम लोग। वास्ट एरिया है IoT के लिए। ओके,
जहां पर हम लोग IoT को यूज कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द थिंग बेसिकली which I just want to tell you। ओके, और इसके बाद जो भी हम लोग प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल्स तो काफ़ी चल ही रहे हैं ऑलरेडी। अगर अभी तक किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी दैट IoT को लेकर। या यस गाइस, अगर किसी का कोई डाउट है प्लीज़ आस्क मी। मेरे सामने चैट बॉक्स अभी आपका खुला हुआ है, ठीक है। गैस देखो, ये सारी चीज़ें करने के बाद हम लोगों को जो चीज़ आना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके लिए हम लोगों को लेट अस सपोज इस चीज़ को और डेप्थ में अगर जानना है, ठीक है, तो फॉर दैट यू कैन जस्ट join the trainings and all the thing। So how many just interested to just know the depth of this IoT? कितने लोग आप में से इंटरेस्टेड हैं जो कि इसकी डेप्थ को जानना चाहते हैं कि IoT में और क्या क्या चीज़ें चलती हैं, इसमें हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं? कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों को लेके? अभी या कल से लेके अगर जो भी हम लोगों ने अभी आज तक की बातें की हैं, ठीक है, थोड़ी और प्रैक्टिकल किए हैं कि मेरे को और जानना है इसमें, राइट। जिन लोगों को जानना प्लीज कमेंट पक्का करना, क्योंकि सब चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ कितने लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं। राइट, मतलब हम लोगों को सबको समझ में आ गया है कि भाई इसकी नीड है मार्केट के अंदर। यस, देखो मैं हम लोग वर्चुअली कितना कर सकते हैं, ठीक है, और विद इन दिस टाइम लिमिट हम लोग कितना कर सकते हैं, वी आर डूइंग बेस्ट, ठीक है। लेकिन अभी जब इसको हमें सीखने की बात आती है, इट्स अ इंट्रोडक्टरी पार्ट ओनली। ओके, इट्स अ किक स्टार्ट फॉर योर कैरियर। ओके, लेकिन जब हम इस चीज को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वहां पर इस चीज को और डेप्थ में जानने की जरूरत होती है। यस, सो आज जिस आईडी से आज मैं लॉग इन हुआ हूँ, दैट इज द इनोवेटर स्टूडियो। ओके, सो we are coming with the live sessions in the market। Okay, the company is having a education domain, the things will declare by RN all the teams over there। Okay, if you just want to join the things। Okay, yeah, that's great यार, काफी लोग हैं जो करना चाहते हैं यार। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। Yes guys, so what I just have to do, मेरे को थोड़ा सा लगा, अगर किसी का कोई डाउट है रिगार्डिंग द कैरियर, ओके प्लीज आस्क मी। आई होप कि हम लोगों ने अनम्यूट का एक ऑप्शन दे रखा होगा, ठीक है। अगर आप चैट में नहीं पूछ पा रहे तो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग टू दैट होस्ट ओवर हियर टू जस्ट गिव द परमिशन टू अनम्यूट। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, ओके, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो मेरे से, ठीक है। क्यों, देखो टेक्निकली अब मैं यहाँ पे Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन थोड़ी चलाना चाहता हूँ, जो कि आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। यस, थोड़ा थोड़ा मैं बोल सकता हूँ होम ऑटोमेशन है, लेकिन पूरा होम ऑटोमेशन सक्सेसफुल नहीं है इंडिया के अंदर।
ठीक है। लोगों को चाहिए बस मेरे को एक लाइट ऑटोमेट करनी है, पूरा घर नहीं कराना चाहते। दे आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ बजट टू हैव 1 लाख रुपीज, लेकिन दे आर हैविंग द बजट ऑफ 1000 रुपीज इन देयर पॉकेट। तो 1000 रुपये से अपनी एक चीज को ऑटोमेट करा सकते हैं, समझे डियर। वो पूरा फुल ऑटोमेशन घर का नहीं कराना चाहते, बट इन द मार्केट द सॉल्यूशंस आर हैविंग टू जस्ट गिव द ऑटोमेशन टू द होल होम, फुल होम। Anyone else? Yes. So, Aryan, are you there? Aryan or the host person is there? Sir. Ishita? Yes, sir. Okay. Yeah. Um, Thank you very much, sir, for this amazing session. Yeah. If participants have any other queries, they can ask in the chat box. Yeah, they can ask me in the chat box because hopefully कि अभी आप मेरे से पूछ सकते हो चीज़ें, because I am live. कैरियर को लेकर अपने किसी भी प्रॉब्लम को लेकर ऐसा भी मेरे पास एक क्वेश्चन है, थिंक दैट कैन हेल्प अस विद इंटर्नशिप्स। या देखो, इंटर्नशिप्स और ट्रेनिंग, एक मैं चीज़ थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों के बीच में, दोनों चीज़ें डिफरेंस है। अगर आप इस इंडस्ट्री की बात करते हो, आईओटी और एम्बेडेड डोमेन के अंदर आप आना चाहते हो, तो ट्रेनिंग अभी मैंने आपको एक किक स्टार्ट दिया इससे, वर्कशॉप से, ठीक है। इसके बाद आपको ज्वाइन करनी होती है एक ट्रेनिंग। वहाँ ट्रेनिंग में आपको अपनी स्किल्स लेनी होती हैं। उन स्किल्स को आप फिर अपने रिज्यूमे में लिखते हो और फिर उसके बाद आप रिज्यूमे को शेयर करते हो किसी कंपनी को। वो लोग अपनी प्रोफाइल्स आउट करते हैं, लाइक व्हाट माय कंपनी ऑक्सीमोरा इज आल्सो हैविंग 12 मंथ ओपनिंग्स फॉर द इंटर्नशिप। 12 महीने हमारे इंटर्नशिप की ओपनिंग रहती हैं अलग अलग फील्ड को लेके। लेकिन वो इंटर्नशिप किस तरह से रहती हैं, आपके रिज्यूमे पर डिपेंड करती हैं। अब मेरे को चाहिए एम्बेडेड हार्डवेयर इंजीनियर, तो आपके पास हार्डवेयर की स्किल्स होना जरूरी है। हार्डवेयर में स्किल्स कौन कौन सी आनी चाहिए, आपको पीसीबी डिजाइनिंग आनी चाहिए, आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट है उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अब मेरे पास प्रोफाइल है आईओटी इंटर्न की, अब उसके लिए आपके पास पाइथन आना जरूरी है, एम्बेडेड सी आना जरूरी है, रेस्पबेरी पाई की नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है, नोड एमसी की नॉलेज होना जरूरी है, आपने नेटवर्किंग पर काम किया हुआ हो, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात। एक इंटर्नशिप पे इतनी सारी एक्सपेक्टेशन होती है किसी कंपनी की, तो पहले आपने वर्कशॉप ली, वर्कशॉप से आपको किक स्टार्ट मिला, उसके बाद आपने ट्रेनिंग में आप लोग आए, ठीक है। ट्रेनिंग में आपने डेप्थ स्टडी करी, ठीक है। उसके बाद आपने अगला मोड लेके आए अपना, ठीक है, और उस अगले मोड को हम लोग बोलते हैं इंटर्नशिप। ओके, तो इंटर्नशिप में आपको जो चीज़ें हेल्प करेंगी वो करेंगी आपकी नॉलेज, और उस नॉलेज के लिए आपको हो सकता है सबसे पहले आपको एम्बेडेड की ट्रेनिंग ज्वाइन करनी पड़े। हो सकता है आपने कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट ढूंढ लिया जहाँ पे एम्बेडेड और आईओटी दोनों को कंबाइन करके कराया जाए, लाइक वी आर लॉन्चिंग इन अ वाइल। ओके, हम लोग विद इन 2 और 3 डेज के अंदर एक अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं इनोवेटर स्टूडियो के नाम से, ठीक है। तो वो सीरीज से लाइव सेशन रहेंगे हमारे पास। ओके, सो इन दैट वे हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं इसके अंदर। और या नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम हैविंग आरटीएल डिजाइनिंग, या राइट। तो रजिस्टर ट्रांसफर लेवल जो होता है डियर, वो क्या होता है अपने पास, जितने भी हमारे पास जो कंट्रोलर होते हैं ना, या कोई भी आईसी हम लोग डिजाइन करते हैं, है ना, तो वो आईसी या फिर चिप जो डिजाइन होती है वो हमारे पास आरटीएल डिजाइनिंग के अंदर आता है। तो डिजाइनिंग पार्ट तो अभी इंडिया के अंदर काफी अच्छे लेवल पर चलता है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फोकस कर रही है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के ऊपर, वो इसीलिए कर रही है कि डिजाइनिंग तो डिजाइनिंग और इसका फैब्रिकेशन भी इंडिया के अंदर शुरू हो। ओके, दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट योर वीएलएसआई। ओके, वीएलएसआई डिजाइन जो सेक्शन होता है उसके अंदर चीजें आती है सारी सारी। यहाँ नेम नहीं आ रहा है आपका। Can you enlist all kind of requirement needed in this industry? This will help us to work accordingly. Yeah, sure.
I'm just writing the listing over here. You must have a knowledge about that embedded C, or I can say that you must have the knowledge of your digital electronics first. Digital electronics. Okay. After the digital electronics, you must have a knowledge about your C language. ओके, क्योंकि सी के रेस्पेक्ट में आपकी एम्बेडेड सी चलती है पूरी की पूरी, ठीक है। पाइथन का आना आपके लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ एनी माइक्रो कंट्रोलर, किसी भी माइक्रो कंट्रोलर का काम करना आना चाहिए आपको, ठीक है। लाइक एज वॉट, अगर आपने 8 मेगा थ्रीटवेट पर काम किया तो 8 मेगा थ्रीटवेट पर काफी अच्छे से आपको काम करना आना जरूरी है, ठीक है। सी लैंग्वेज, पाइथन, ठीक है। किसी भी एक माइक्रो कंट्रोलर पर काम करना आना चाहिए। फिर उसके बाद आपको वाईफाई से कनेक्टिविटी होना जरूरी है। वाईफाई कनेक्टिविटी या जीएसएम कनेक्टिविटी को लेकर अगर हम बात करते हैं तो वो आपको आना जरूरी है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं आईओटी की बात करता हूँ, आईओटी में ज्यादा कुछ नहीं, बस इतनी चीजें हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है। आनंद जी पूछ रहे हैं सर कैन बी सेल्फ डिजाइन आर्डिनो, यस। पीसीबी डिजाइनिंग आपको आना जरूरी है, ठीक है। आप अपना खुद का आर्डिनो डिजाइन कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपको सिर्फ 2 पिन चाहिए तो 2 पिन के अकॉर्डिंग आप डिजाइन कर दो, ओके। फॉर यू मस्ट हैव अ नॉलेज अबाउट द पीसीबी डिजाइनिंग, ओके। So any other doubt? Thank you very much, sir. We also have with us our faculty coordinator, Dr. Rashmi Agarwal ma'am. She has been a constant source of motivation and guidance for all of us. She is serving as the secretary at IEEE Women in Engineering Delhi section and is also an ExCom member at IEEE Delhi section. Thanks a lot, ma'am. With that, we have reached the ending of such an amazing workshop. Thank you, sir. With Thank that, you so much. yes, I would like to Thank you, express sir. our sincere thanks to Mr. Prashant for giving excellent coverage to the world of IoT. It was such an unique and interactive approach. We really appreciate you for making time in your busy schedule to speak to us. Thanks again for your time. A big thanks to all the participants for attending this workshop. The feedback form has been circulated in the chat section and WhatsApp group. You all are requested to